Hi, I'm Sanjay Chakravarti, and I'll just tell you how we all landed up in Bombay. My dad was a musician in Calcutta, proper Calcutta, playing for new theatres. पंकज मलिक साहब के साथ काम करते थे. He was assistant to Pankaj Malik also in a later stage. So in Calcutta there was this huge show. By show I mean a performance in a open arena where four music directors from Bombay had gone to perform. I'm not sure of all the four, but S.D. Burman Saab was there, Salil Da was there, and Naushad Saab was also there. I'm not remembering the fourth one, I'm sorry. So they had brought a lot of musicians from Bombay. It was Bombay then. So Naushad Saab always used a big orchestra. He always had a big orchestra for him. So he had brought his basic musicians from Mumbai, but he had told Salil Da to arrange some musicians from Calcutta also. Salil Da was that time working in Hindi films from Mumbai and Bengali films from Calcutta. So he had picked up Basu Chakravarti, my dad, Monir Singh ji, and yes, a couple of more to play for that particular event. And during the rehearsals, when Naushad Saab's songs were being looked into, Naushad Saab took a liking for my dad. He liked the way my dad was playing the cello. So after the show in Bombay sometime, he told Salil Dada कि सलील हो सके तो वो बासु और मनहरी को मुंबई लेके आ, राधा बॉम्बे लेके आ. तेरा काम और मेरा काम करेंगे तो मुंबई में आराम से ज़िंदगी निकल जाएगी. हाँ, काम का फिक्र नहीं है, तेरा और मेरा यूं ही बहुत है. तो for some recording, Salil Dada came to Calcutta. He told this to my dad. Manada didn't take it seriously at all. Manada was younger than my dad. So one fine day my dad decided, let's go with Salil Dada to Bombay. He was married then in Calcutta. He left my mother in Cal to see how Mumbai suited him. He landed in Mumbai. He used to stay with Salil Dada's house, in Salil Dada's house. Salil Dada's wife, Jyoti Jetima, had done a lot for us. My dad started working for Salil Dada and went and met Naushad Saab. Naushad Saab said, I'm recording in Mehboob on Tuesday and you are welcome there. He started working there. That's how we landed in Bombay. Then he kept on writing to Monir Da कि Monir এখানে অনেক কাজ আছে, means there's a lot of work here. তুই এসে যা, এখানে থাকবার খাবার কোনো প্রবলেম নেই, मतलब खाने का और रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके 6 महीने बाद Monir Da took a decision, come let's try Bombay. He came here. He also stayed at Salil Dada's house, and that's how we landed up in Bombay. Then meeting Bade Dada, S.D. Burman Saab, was a little later. बड़े दादा के वहाँ सुरितकर साहब काम करते थे. I have one question, sorry. Yeah. Which year was the show in Calcutta? I'm very bad with years. Okay. I'm very bad with years. But you know which year your dad came to Bombay? No. I was born in 63. 4 years before that, my sister was born. Maybe at least 3 years before that, he must have come here. I'm very bad with years. तब बम्बई में चलो बजाने वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन my dad had something unique in him. So that is what attracted him. Then working, he came in touch with S.D. Burman Saab. Bade Dada you called him? Bade Dada.
बड़े दादा Was he termed as Bada Dada only? Was he called Bada Dada? नहीं, एक्चुअली कलकत्ता में क्या होता था, जॉइंट फैमिली वाला कल्चर होता था. There used to be those big houses, old type houses, Yeah. जिसमें एक जगह होता था बीच में जिसको उटून बोलते हैं, जिसको हिंदी में आंगन बोला जाता है घर का, उसको बंगाली में उटून बोलते हैं. वो एक उटून जैसा घर होता था और उसके जो सबसे बड़े व्यक्ति होते थे उस परिवार के, उस घर का, उनको बड़ो कोत्ता बोलते थे. अच्छा, जिसको आप लोग बिग डैडी बोलते हो ना, हाँ. बड़े पापा या बिग डैडी बोलते हो, तो बड़ो कोत्ता बोलते थे. तो बर्मन दादा was basically termed as कोत्ता. Where the Bengali producers like Subodh Mukherjee साहब, शक्ति दादा साहब, they used to call him कोत्ता, मतलब घर के बड़े. हाँ. और उनकी एक खासियत थी, वो इनको गाना चूज भी नहीं करने देते थे. वो अपना गाना निकाल के बोलते थे कि तुम्हारे सिचुएशन में ये फिट बैठता है. किसको ये बोलते थे? कोई भी प्रोड्यूसर को. इट वॉज वेरी लिटिल यू कुड चूज फ्रॉम. He will give a song for that situation. Yeah, he will give a song for that situation and he will justify it. He will justify it. हिंदी बोलों के उनको समझ बहुत कम थी. ऐसे कई किस्से हैं कि आप हंसते हंसते लोट पोट खा जाओगे बड़े बर्मन दादा के बारे में. बड़े बर्मन दादा धीरे धीरे क्या हुआ, माई डैड गॉट पॉपुलर इन बॉम्बे एंड देन Barman Dada, the big Dada, started calling me over to his sitting room at Jet, first floor, today which is Raija Construction House on Linking Road. तो वहाँ बुलाने लगे. फर्स्ट फ्लोर पे बड़े दादा रहते थे. Barman Dada was a unique kind of person. तो धीरे धीरे बर्मन दादा के सिटिंग रूम पे हारमोनियम तक आने लगे मेरे डैड. बर्मन दादा इस तरफ अपने हारमोनियम पे रहते थे और ये रहते थे. वो एक बार पंचम दा का कम सुन ले सिटिंग में, लेकिन बासु का जरूर सुनेंगे. अच्छा, बासु का जरूर सुनेंगे. सबको बंद करके बासु तू की बोलचिस बोल, हाँ ऐसा कर ले, ये ठीक है. अच्छा, फाइनल मुझे हिसाब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हाँ. किसी भी सिंगर को, किसी भी सिंगर स्टार्टिंग फ्रॉम बड़ा दीदी, लता दीदी, हाँ. गीता दीदी से लेके किधर भी आप यंगर तक जाओ, बड़े बर्मन दादा से अच्छा गाना सिखाता है मेरे ख्याल से कोई भी नहीं सकता है. अपना गाना किसी सिंगर को हमको सिखाना पड़ता है, क्योंकि सिंगर को तो मालूम नहीं आपका कंपोजिशन क्या है. आप पहले उनको बोल लिखवाओगे, बोल लिखवा के फिर एक ब्रीफ अप दोगे कि ये क्यों हो रहा है पिक्चर में. सिचुएशन ब्रीफ अप देने के बाद आप की हारमोनियम पे या कीबोर्ड पे हाथ रख के उसको गाना सिखाना शुरू करोगे. आप गाओगे, 2 बार गाओगे, 5 बार गाओगे, फिर धीरे धीरे ही और शी विल स्टार्ट पिकिंग इट अप. तो ये जो सिखाने का गुण था ना, मेरे ख्याल से बड़े बर्मन दादा से बेटर कोई नहीं सिखा सकते किसी सिंगर को. मतलब लता दीदी, आशा दीदी, गीता दीदी को वो गाओ माँ, गाओ माँ, गाओ माँ बोल के सिखाते थे. मतलब ही इज टू रेफर टू देम एज माँ, एज माँ गाते थे. बहुत सुरीला आवाज था, यूनिक सा एक टोन था उनका. उनके साथ ही गया उस टोन इस धरती से. इस धरती में वो टोन उनके साथ ही गया. वो गाते थे मुखड़ा, गाओ माँ, ना मानना, ना मान, ना देख अमीर देख, बंगाली में ही बात करते थे. एंड थैंक्स टू बड़े बर्मन दादा, दोनों जो हमारी दीदियाँ हैं वो आज भी बहुत खूबसूरत बंगाली बोलती है और समझती है. लता जी और आशा जी बहुत ही खूबसूरत बोलती है और पूरी समझती है. जरा भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ता है. आधी रात को कल रिकॉर्डिंग है तो पता चले 12:30 बजे फोन बज रहा है, फोन बज रहा है, फोन बज रहा है. आदमी नींद से उठ के हेलो बोलता है. हाँ किशोर, हाँ अरे दादा इस वक्त नहीं, मैं तू सो जा, मुझे खाली सुनना था, आवाज तो ठीक है ना तेरा. फोन रख दिया. कल गाना है, सैड सॉन्ग है, सीरियस सॉन्ग है, किशोर का आवाज तो ठीक है ना. तो धीरे धीरे मेरा डैड हारमोनियम पे बैठने लगे और
he and Manojda with Panchamda and Maruti ji, they formed that unique team for Bade Dada as well as Pancham Dada. That unique team, जैसे बोले अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न बैठे होते थे ना, हाँ, तो ये वो रत्न है जो जेट में बैठना शुरू हुआ. जेट में बैठना शुरू हुआ. सेबेस्टियन साहब फुल फ्लेजेड अरेंजर, म्यूजिक अरेंजर, फुल फ्लेजेड, मतलब अनपार, एंड यू कांट गेट क्लोज टू सेबेस्टियन साहब. इमैक्युलेट. आज तक उनके शंकर जयकिशन जी के या नैयर साहब के गाने के म्यूजिक सुनते तो हम वाह बोलते हैं. और बड़े बर्मन दादा क्या बोलते थे, देख बासु, लड़की की शादी है, हमारे घर की लड़की की शादी है, उसको इतना श्रृंगार करा कि खूबसूरत लड़की की खूबसूरती भी दिखाई दे. तो इतना श्रृंगार कर देगा कि लड़की की खूबसूरती ही मिट जाएगी, तो वो अरेंजमेंट नहीं होता है. वो जो लड़की की जो खूबसूरती है, उसका नाक, उसके आँख, उसके होंठ, उसके बाल, उसकी खूबसूरती, उसको बरकरार रखते हुए जितना श्रृंगार की जरूरत है, उतना इसी को अरेंजमेंट बोलते हैं. Simplicity is the best city. We have learned from Bade Dada.